Standard 3rd, Subject Mathematics, Chapter Fraction. Take out your Pearl textbook, Semester 2nd, page number 93. Exercise 1.7, Part B, Add. Question number 1. Two fraction number are given, 2 by 5 and 1 by 5. You have to add these two fraction number. Okay students, we have to add 2 by 5 with 1 by 5. We have no work with the denominator. We have to write the denominator as it is. Okay. Draw the horizontal line. Write the denominator as it is. Only add the numerators. Where we have to focus? We have to focus on adding the numerators. If the question has given you the same denominators, which is called as the like fraction, so in this type of the question, you will have to focus only on adding the numerators. Don't focus on adding the denominators. You have to write the denominator as it is and focus on adding the numerators. Above horizontal line, you will write first numerator 2 plus 1. What will be the final answer? Below horizontal line, write the denominator as it is. Add 2 with 1. Add 2 with 1. Open two fingers. 2 and then open one more fingers. So how much it will become? 1, 2 and 3. How much will it become? 1, 2 and 3. So our final answer will be 3 by 5. Clear students? Question number 4. 6 by 11 plus 3 by 11. First I will write the answer here. What is our answer here? Our answer is 3 by 5. So I will write here final answer 3 by 5. Question number 4. We have to add 6 by 11 with 3 by 11. How to add this 6 by 11 with 3 by 11? We have to focus only on the numerator. So write the denominator as it is, which is 11. Now add 6 with 3. Now add 6 with 3. What will be the answer? Write the denominator as it is. We have to add 6 with 3. So first open 6 finger. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now open 3 more fingers because we have to add here. 1, 2 and 3. How much it will become? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. What is the final answer? 9. First we have to open 6 finger. Then I have to open 3 more fingers because we have to add here. So what is the final answer? It is 9. Our final answer will be 9 by 11. I will write this answer here in question number 4, 9 by 11. In the similar way, solve question number 16. 6 by 17 plus 5 by 17 plus 4 by 17. What I have told you students, the numbers which are having the same denominators are called as the like fraction, and to add this type of the number you have to just focus on the numerator part. Don't focus on the denominator. Write the denominator as it is. Draw horizontal line. Write the denominator as it is, which is 17, but focus on adding the numerator. What is our first numerator? It is 6. Second numerator is the 5 and third numerator is the 4. What is our first numerator? 6 plus 5 plus 4. Now we have to add this 3 number 6. So first draw 6 line. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then draw 5 more lines. 1, 2, 3, 4 and 5. Draw 4 more lines. 1, 2, 3 and 4. Count how much it will become. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. How much it will become? It will become 15. So what will be the answer? Below horizontal line, denominator will be the 17 and above horizontal line, our final answer will be the 15. What will be the final answer? 15 upon 17.
So we will write the answer here. 15 upon 17. Clear students? You have to solve the remaining question. It is your homework. बच्चों पार्ट बी के अंदर आपको क्या करना है, 2 फ्रैक्शन को ऐड करना है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब लाइक फ्रैक्शन आपको गिवन हो तो डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम टू सेम आपको लिख देना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया और डिनोमिनेटर को सेम मैंने लिख दिया जो 5 है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया, इसमें भी क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर सेम था तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया और डिनोमिनेटर को सेम 11 करके लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को मैंने सेम लिखा 17। आपको करना क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर फोकस करना है और उसको ऐड करना है। तो इसमें न्यूमरेटर कितना है 2 और इसमें 1 है तो 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे। जब 2 को 1 के साथ ऐड करने के लिए 2 फिंगर्स को ओपन करेंगे, उसमें और एक नंबर को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3/5। इसमें 6 है और 3 है तो 6 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखो पहले 6 फिंगर्स को ओपन करेंगे और फिर और 3 नंबर्स को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 9/11। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें 6 + 5 + 4 करना था तो 6 + 5 + 4 करने के लिए उंगलियां थोड़ी कम पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया है। देखो आपको पहले 6 लाइन को ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स को ड्रॉ कर लिया। अब बाद में और 5 लाइन्स को ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 और 5 और 4 लाइन्स को ड्रॉ करना है, 1 2 3 और 4। अब इन सबको जोड़ लेना है, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ गया टोटल आंसर 15। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, उसके नीचे डिनोमिनेटर को सेम लिखा और उसके ऊपर जो एडिंग करके नंबर आया 15 वो लिख दिया। इस तरीके से आपको ऐड करने हैं फ्रैक्शन नंबर्स को जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क है गिवन ब्लैंक्स के अंदर कंप्लीट करना। क्वेश्चन ऑन द नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको नंबर लाइन बनाना सिखा दिया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर उस नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम लोग 2 फ्रैक्शन नंबर का एडिशन करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो सीखेंगे। ठीक है, पहले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और क्या कहा था सेकेंड स्टेप, आपको ये नंबर लाइन स्टार्ट करना है 0 से। ठीक है, किससे स्टार्ट करना है 0 से। अब ये जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हैं कि कितना है आपका डिनोमिनेटर 5, तो 0 के नीचे कितना लिख दोगे आप 5 लिख दोगे। क्लियर। अब इसके बाद आपको सभी में डिनोमिनेटर क्या करना है सेम रखना है, सभी में डिनोमिनेटर्स आपको सेम रखना है। तो सेकेंड नंबर लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को सेम रखा, 0 के बाद क्या आता है 1। थर्ड नंबर लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2। फोर्थ नंबर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3। फोर्थ नंबर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और 3 के बाद क्या आता है 4। फिफ्थ नंबर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, 4 के बाद क्या नंबर आता है 5। आपको पता है मैंने उस दिन भी सिखाया था कि जब हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो नंबर्स हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, हम लोग नंबर्स तब तक लिखेंगे जब तक हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता। देख सकते हो आप लोग कि न्यूमरेटर कितना हो चुका है 5 और डिनोमिनेटर भी कितना हो चुका है 5। जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहीं पे हमको स्टॉप करना है, यहीं पे हमको ख़त्म करना है। 0 अपॉन एनी नंबर, उस दिन भी बताया था कि 0 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है 0। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये तो हमने नंबर लाइन बनाना रिवाइज कर लिया। अब हम लोग नंबर लाइन के ऊपर 2 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पे कौन से 2 नंबर्स को ऐड करना है 1/5 और 3/5 को। कौन से 2 नंबर्स को ऐड करना है 1/5 और 3/5 को ऐड करना है।
पीछे के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करे थे उसमें भी देखा था कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डिनोमिनेटर के कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे, डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज लिख दे रहे थे। हम लोग ऐड किसको एक्चुअली कर रहे थे, हम लोग जो न्यूमरेटर्स है उसको ऐड कर रहे थे। तो इसमें भी सेम हम लोग न्यूमरेटर्स के ऊपर फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर भी डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, तुम्हारे सेम डिनोमिनेटर्स हैं। ओके, तो नंबर लाइन को हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 से नंबर लाइन को स्टार्ट किया। अब क्या गिवन है आपको, पहला नंबर 1/5, यानी कि न्यूमरेटर कितना गिवन है तुमको, 1 गिवन है। तो आपको 1 यूनिट जितना डिस्टेंस जो है वो मूव करना है। देखो 0 to 1 यूनिट हुआ, तो आपको 1 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करना है। फिर उसके बाद आपको 3 गिवन है, यानी कि 1 + 3 यानी कि 3 गिवन है, तो 3 यूनिट आपको मूव करना है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट आपको मूव करना है। 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट आपको मूव करना है। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 4/, आ रहा है। जब आपका नंबर लाइन के ऊपर आंसर आ जाए तो आप उसे चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो सिंपली जैसे पीछे ऐड करे थे वैसे ऐड करके देख सकते हो। डिनोमिनेटर को सेम रखा, पहला न्यूमरेटर है मेरा 1, दूसरा न्यूमरेटर है मेरा 3, तो 1 + 3 किया तो कितना आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 5। 1 + 3 ऐड करना है, तो 1 फिंगर को ओपन किया, फिर और 3 फिंगर्स को ओपन कर दिया। तो अब गिन लो कितना होता है, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नंबर लाइन के ऊपर एडिशन करना है। पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद नंबर लाइन को 0 से स्टार्ट करना है और तब तक जाना है। और जो डिनोमिनेटर होगा हमारा क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर था तो 0 के नीचे लिखा 5, अगर 6 डिनोमिनेटर होता तो 0 के नीचे लिखते 6, और अगर 7 डिनोमिनेटर होता तो 0 के नीचे हम लोग 7 लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 0 के नीचे मैंने 5 लिखा। और 0 के नीचे अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर कितना आता है हमारा, 0। अब ये नंबर को हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं बन जाता, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अब सब में सेम रखेंगे 5, अब न्यूमरेटर को चेंज करते रहेंगे। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 के बाद क्या आता है तुम्हारा 5 आता है। क्लियर है। अब आपको कौन से दो नंबर ऐड करने, 1/5 प्लस करना है 3/5 के साथ। तो नंबर लाइन में पहले स्टार्ट करना है 0 से, 1 गिवन है तो 1 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको मूव करना है। आपको 3 गिवन है तो 3 यूनिट जितना डिस्टेंस, यानी कि 1 2 और 3 3 यूनिट कह रही हूँ मैं बच्चों, हाँ 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट जितना डिस्टेंस जो है आपको मूव करना है, 1 2 और 3। तो कितना आंसर आ रहा है आपको, 3 यूनिट जितना मूव करके 4/5 आ रहा है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप लोग इसको सिंपल एडिशन जैसे पीछे कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, 1 को ऐड कर दिया 3 के साथ, 1 को 3 के साथ ऐड कर दिया, तो कितना आंसर आ गया मेरा 4। तो आंसर फाइनल कितना आ गया, 4/5। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/7 को 2/7 के साथ ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसको छुपा लेना है, उसको हाइड कर लेना है। आपको अभी करना क्या है, पहला डिनोमिनेटर स्टार्टिंग हमको किससे करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला डिनोमिनेटर क्या है आपका 3, तो आपको 3 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करना है। क्या करना है, 3 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करना है। ये आपका 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ और 3 यूनिट हुआ। तो 1 2 और 3 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको क्या करना है, मूव करना है। ये आपका 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट हुआ और ये आपका 3 यूनिट हुआ। तो 3 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव किया तो कितना आ गया आपका आंसर, 3/7 आ गया, ठीक है। अब आपको 2 यूनिट जितना डिस्टेंस जो है वो मूव करना है। 1 यूनिट और 2 यूनिट कितना डिस्टेंस मूव करना है, 2 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करना है। तो 1 और 2 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 5/7। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5/7। तो हम लोग लिख देंगे फाइनल आंसर 5/7। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले 0 से नंबर लाइन को स्टार्ट करना है और पहला जो न्यूमरेटर आपको गिवन है 3, तो 3 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको मूव करना है। 1 2 और 3 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको मूव करना है।
फिर उसके बाद आपको 2 गिवन है, तो 2 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको मूव करना है 1 और 2 यूनिट जितना डिस्टेंस आपको मूव करना है। तो 2 यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करने के बाद जो नंबर लाइन के ऊपर आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एडिशन के बाद का आंसर आएगा। आपको चेक करवा दूँ मैं, आप भी ऐसे खुद से चेक कर सकते हैं। देखो आपको मैंने पहले भी सिखाया था 3/7 को अगर 2/7 से ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और 3 + 2 करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 को जब 2 से ऐड करते तो 3 उंगलियां खोल लो, फिर और 2 को ऐड कर लो, तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 और 5। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 5/7 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पे भी नंबर लाइन के ऊपर आंसर कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। नंबर लाइन किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को छुपा लिया। पहले कितना यूनिट जितना डिस्टेंस मूव करना है, 3 यूनिट जितना, 1 2 और 3 यूनिट जितना डिस्टेंस मैंने मूव किया। इसको लाइन से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट यानी कि शो कर देंगे। अब कितना यूनिट मूव करना है, 5, 1 2 3 4 और 5। इस नंबर के बाद हम लोग गिनना चालू करेंगे 5 नंबर को, 1 2 3 4 और 5। कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, 8/11 में। अब ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करके दिखा देना है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 8/11 आ रहा है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 8/11 आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। पहले कितने डिस्टेंस मूव करना है, 4, 1 2 3 4। ये हमारा 4 आ गया, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे लाइन से शो कर देंगे। अब कितना डिस्टेंस मूव करना है, डिनोमिनेटर देखो छुपा लेना, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस मूव करना है, 1। तो इसके बाद एक नंबर 1 यूनिट। तो आ गया हमारा आंसर कितना, 5/9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5/9। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी के क्वेश्चन आपको यही टेक्स्ट बुक में होमवर्क में करना है। We end our video here. In this video we understood how to add two fraction having the same denominators and also how to show the addition on the number line. I have solved few questions from the exercise 1.7 part B and also from exercise 1.8. The remaining question are your homework. इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि कैसे दो फ्रैक्शन जिनका सेम डिनोमिनेटर है उनको ऐड करना है और कैसे नंबर लाइन के ऊपर एडिशन करके हमको शो करना है। एक्सरसाइज 1.7 के पार्ट बी से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एक्सरसाइज 1.8 से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आप उसे अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना।